Learning about the natural disasters in this chapter. We have already learned about earthquake and we were learning about volcano. We know that when there is a lot of increase in the heat and pressure in the of the earth, then the materials inside the crust, they come out with a great force. And when this hot fire comes out with a force along with rocks, ashes, smoke, other minerals, dust particles, etc., this is called as a volcano. Okay, volcano is it forms a shape of a mountain. It has a vent meaning an opening from where the lava comes out. These volcanoes are again of three types. एक्टिव volcano which can erupt any time जिसको हम लाइव volcano भी बोलते हैं. Dormant volcano means right now it is not active but it can erupt any time जिसको हम बोलते हैं sleeping volcano. And the last one is extinct volcano means which erupted once but then after hundreds or thousands of years it has not erupted at all जिसको हम बोलते हैं dead volcano. Right, so there are in all three volcanoes. Whenever a volcano erupts, there is lot of destruction. There is a situation of earthquake in the nearby places, and lot of things are damaged. But सामने volcanoes के benefits भी है. There are some of the benefits, some of the advantages of a volcanic eruption also, which we are going to learn today. Any doubts till now, anybody? Okay. Can you see the page on the screen? Benefits of volcano वाला paragraph दिख रहा है? Okay, अभी आ जाएगा. Are you in a screen? Okay, let's do the reading part. Be ready with your classwork and your pens. Volcanoes have certain benefits also. The fertility of land increases due to lava. Now what happens? कि जो lava erupt होता है और after years this lava cool downs and during the process of cooling the material inside the lava it is absorbed in the land and this makes the land very fertile. So this is the best advantage of a volcanic eruption. Okay, the agricultural production is very good due to fertile land in Java and Sumatra as it is made of lava. Java Sumatra countries है और वो countries में बहुत बार volcanoes erupt होते हैं. And due to this the land there is very fertile. Crops की quality और quantity increases a lot. The potassium-rich soil from the volcanic residues helps the farmers to obtain abundant crop production. Abundant means lot of or you can say plenty. Okay? Write this next word. Abundant meaning lot of. यहाँ पर. Abundant means lot of. Now whenever the lava erupts, आएगी बेटा. You might be having some net issues. So आपका थोड़ा सा देर से दिखेगा. Don't worry. Okay, so when the lava erupts, तो lava में सबसे ज्यादा होता है potassium. Okay, you can see this potassium. Potassium is a mineral or potassium is the nutrient which makes the soil very fertile. Okay, तो जब भी lava में से potassium land में absorb होता है, it makes the land very fertile, and so the farmers can get lot of crop production. Have you written the meaning, all of you? Have you written the meaning? Okay. The hot water spring areas of volcanoes have germ killing property and that cures skin diseases. Now we know that volcano whenever it erupts it comes out from a vent or an opening. ठीक है? तो suppose take an example, this is a volcanic eruption. ठीक है? यहाँ से volcano और लावा इरप्ट होता है बट साइड बाय साइड ये जो वोल्केनिक माउंटेन फॉर्म होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे वेंट्स होते हैं क्रैक्स हो जाते हैं और ये क्रैक्स में से
कंटिन्यूअसली पानी निकलता रहता है, एंड बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, क्योंकि बहुत नीचे से आता है, तो जनरली दिस वाटर इज हॉट. ओके, तो इसके लिए उसको बोलते हैं हॉट वाटर स्प्रिंग. समझ में आ रहा है हॉट वाटर स्प्रिंग कहाँ से इरप्ट होता है, कैसे होता है, ऑल ऑफ यू राइट नाउ. क्योंकि ये हॉट वाटर स्प्रिंग अंदर से आता है बाहर, तो दिस ऑल्सो कंटेन्स लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एंड वो गर्म पानी ऐसा होता है जिससे द जर्म्स आर किल्ड एंड मेनी ऑफ द स्किन डिजीजेस आर ऑल्सो क्योर्ड. ये वाले हॉट वाटर स्प्रिंग में अगर व्हेन यू टेक अ बाथ, अगर आप वहां पर नहाते हो पानी भर के, तो आपके बहुत सारे स्किन डिजीज जो है वो क्योर हो जाते हैं. राइट, सो दिस इज वन मोर बेनिफिट ऑफ द वॉल्केनोस. देन at a lower depth from surface of earth, certain minerals like mercury, tungsten, tin plating, zinc, aluminum, etc. can be obtained easily due to volcano. Now these all are minerals. शायद आपने सुना होगा ये सब minerals के names. Yes or no? So when what happens that when a volcano erupts again, आपको पता होगा कि यहाँ पर अर्थ में नीचे बहुत सारे मिनरल्स हैं. ठीक है, तो होता क्या है कि जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो विथ फोर्स बहुत सारी चीजें बाहर निकल जाती है, जबकि बहुत सारे मिनरल्स जो है वो ऊपर तक आ जाते हैं, यहाँ तक पहुंच जाते हैं. तो हमारे लिए क्या इजी हो गया दैट हमें बहुत अर्थ को डिग नहीं करना पड़ेगा. माइनिंग एक्टिविटी विल बिकम इजियर. थोड़ा सा अर्थ को डिग करो एंड यू कैन गेट ऑल दीज मिनरल्स. एंड विच आर दीज मिनरल्स? मर्क्यूरी, टंगस्टन, टिन, जिंक, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा. राइट, सो मिनरल्स का लेवल ऊपर आ जाता है, एंड दिस इज अगेन वन बेनिफिट ऑफ द वॉल्केनो. एनी डाउट्स? Okay. The lava that cools down inside the vent of extinct volcano. Now we are talking about extinct volcano. Extinct volcano मतलब उसका दूसरा नाम मैंने क्या बताया था आपको? A dead volcano. मतलब एक बार volcano erupt हुआ था, then hundreds thousands of years it has not erupted at all. ठीक है, dead volcano. तो वहां पर क्या है कि अंदर की साइड लावा जो है वो सॉलिड हो चुका है. ठीक है, कूल डाउन हो चुका है. So the lava that cools down inside the vent of extinct volcano turns it into diamonds with the passage of time. ये जो ठंडा पड़ गया लावा है वो धीरे धीरे डिकम्पोज होके प्रोसेस होके it results into diamonds. And you know how valuable diamonds are? Yes or no? The small rocks thrown out during volcanic eruption known as lapilli. Lapinos नहीं, lapilli. ठीक है, which have been proved to be very useful as they can be molded easily. Molded means they can be given shape easily. Okay, do one thing, write the new meaning. Next में लिखो molded. Molded means shaped. okay? तो जब वॉल्केनो इरप्ट हो जाता है, हमें पता है कि वॉल्केनो में लावा, स्मोक, गैसेस के साथ पीसीज ऑफ रॉक्स आर ऑल्सो थ्रोन. याद आ रहा है? तो ये जो रॉक्स है वो एकदम हार्ड नहीं होते, क्योंकि हमें पता है कि दे पास थ्रू इंटेंस हीट एंड लॉट ऑफ टेम्परेचर, सो दैट रॉक्स आर नॉट वेरी हार्ड. तो वो रॉक्स को आप कोई भी शेप में, कोई भी मोल्ड में चेंज कन्वर्ट कर सकते हैं. दीज रॉक्स आर नोन एज लापिली. देखो यहाँ पर दिया है लापिली. ओके, लापिली रॉक्स ऐसे हैं जो कि वोल्केनो के टाइम बाहर निकले थे वेंट में से, और वो उतने हार्ड नहीं होते. दे कैन बी मोल्डेड और शेप्ड इजीली. सो दिस इज अगेन वन मोर एग्जांपल ऑफ द वोल्केनो. सो इन ऑल हमने वोल्केनोस के कितने बेनिफिट्स लर्न किए? नंबर 1, इट मेक्स द सॉइल वेरी फर्टाइल. नंबर 2, the hot water springs cure the diseases. Number 3, we get lot of minerals. Number 4,
diamonds, and number 5, this lapilli. These are the 5 benefits of volcano. Any doubts? Anybody? Okay, now let's move to one more natural disaster and that is tsunami. अब tsunami मतलब हमने आगे कौन से 2 disasters लर्न किए? Yes, earthquake, volcano. अब यही earthquake, यही volcano. Yes, when the same earthquake and the same volcano they occur under the water, then it results into tsunami. ठीक है. अर्थक्वेक में क्या होता है कि लैंड वाइब्रेट होती है, बिल्डिंग होते हैं वो गिर जाते हैं. वोल्केनो में क्या होता है, देयर इज एन इरप्शन एंड एवरीथिंग इज थ्रोन आउट. बट एट द बॉटम ऑफ द ओशन, ओशन फ्लोर पे कोई बिल्डिंग्स नहीं होते कि वो गिर जाए, है ना. कोई इट इज फुल्ली वाटर एवरीवेयर, तो उतनी आग भी नहीं लगती, उतना लावा भी नहीं निकलता. बट because there is lot of vibration, because there is earthquake or because there is volcano at the bottom of the ocean, the water gets a lot of thrust. water को एक बहुत ही फोर्स मिलता है और नीचे से इतना फोर्स आता है कि वाटर जो है, पानी, उनकी वेव्स एकदम बड़ी बड़ी जंप करती है और इतनी बड़ी के बड़े से बड़े बिल्डिंग को भी वो गिरा सकती है. आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि सपोज यहाँ पर एक बिल्डिंग है, ठीक है, और यहाँ पर ओशन है. तो अगर ये ओशन के बॉटम में इफ हियर देयर इज एन अर्थक्वेक और एन और अ वोल्केनो, तो यहाँ पर इतना फोर्स आता है कि ये वेव्स इतनी लंबी जा सकती है बिल्डिंग के ऊपर. तो यू कैन इमेजिन कि वो पानी में कितना फोर्स हो सकता है. समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? शायद आपने सुनामी के कोई वीडियोस वगैरह देखे होंगे तो आपको ज्यादा पता होगा. यस, बहुत ज्यादा हिट करती है. ओके, और यहाँ पर भी हमें पिक्चर्स दिए हैं इसके सुनामी के. हाँ, क्यों? क्योंकि वहां पर ओशन है ना. देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितना फोर्स से पानी सिटी में एंटर हो रहा है ना. और ये तो एक्चुअली वेव्स कुछ भी नहीं, इससे बहुत ही बड़ी होती है. अभी साइज वाइज सब हमको यहाँ पर दिखाई देंगे. ठीक है, चलो. सो शैल वी डू द रीडिंग पार्ट ऑफ सुनामी? यस, चलो लेट्स डू द रीडिंग पार्ट. सुनामी, इसमें टी होगा साइलेंट. Due to volcanic eruption or earthquake on the sea floor, high oceanic waves are created. They are known as tsunami. They are high and have unimaginable length. आप imagine भी नहीं कर सकते उतनी length होती है, unimaginable. Their length is approximately 700 to 1600 kilometers. 700 to 1600 kilometers. Now I'll give you a small example. ये खास आपको बहुत ही सरप्राइज फील होगा. ये जो है 700 to 1600 किलोमीटर्स. आई जस्ट गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल. राजकोट से अहमदाबाद आप जाओगे तो इट इज 200 किलोमीटर्स. ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम राजकोट टू अहमदाबाद इज 200. ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. अब यही 200 किलोमीटर्स अगर ऊपर वेव्स की फॉर्म में आए तो वो कितना ऊंचा हो सकता है. मतलब नीचे राजकोट, ऊपर अहमदाबाद. तो समझ में आ रहा है उसकी हाइट. तो ये तो है सिर्फ राजकोट टू अहमदाबाद 200 किलोमीटर्स. वी आर टॉकिंग अबाउट 700 मिनिमम एंड 1600 मैक्सिमम हाइट ऑफ द वेव्स. अभी आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी बड़ी वेव्स हो सकती है, कितनी बड़ी, है ना. Yes, so this is the force of an earthquake or a volcano below the ocean. अभी आप मन में ऐसा देख सकते हो ना कि इसकी हाइट कितनी हो सकती है. ओके, चलो अभी वापस रीडिंग पार्ट.
So their length is approximately 700 to 1600 kilometers. These waves travel with a great speed and great force. Speed भी होती है, force भी होता है. By the time they reach the coast, they attain great height and power, which causes a great deal of destruction in the coastal regions. Coastal regions obviously वहां पर ज्यादा destruction होगा, और जैसे ही आपका घर या आपका सिटी जितना भी कोस्टल एरिया से दूर है, तो उतनी धीरे धीरे स्पीड उसकी कम होती जाती है. ओके. It was witnessed on 11th March 2011 in Japan. 2011 मतलब शायद आप सबका बर्थ हो चुका था तब, है ना. और ये डेट भी एकदम, हाँ, और ये डेट भी हम इजीली याद रख सकते हैं. देखो 11/3/11, ठीक है, तो ये याद रखने में भी इजी है. 11/3/11. और एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव सुनामी आया था इन जापान, तो ये भी हमको डेट याद रखनी है. ओके, तो तुम्हें तो याद ही रहेगा, है ना. स्ट्रॉन्ग एंड व्हर्लिंग विंड. यस, जापान में अर्थक्वेक्स भी बहुत होते हैं. नाउ स्ट्रॉन्ग एंड व्हर्लिंग विंड्स. व्हर्लिंग मतलब ऐसी विंड्स जो राउंड राउंड घूमती है. राइट, द नेक्स्ट बवंडर बोलते हैं, व्हर्लपूल बोलते हैं. अब बवंडर क्या है? बवंडर क्या है? वो हवा का होता है, और व्हर्लपूल जो है वो पानी में होता है. तो दिस इज द डिफरेंस. ओके. ओके, राइट द न्यू मीनिंग. व्हर्लिंग मीन्स राउंड राउंड. हाँ, हाँ. इवन पानी की बोतल में आप एकदम इसको हॉरिजॉन्टल रख के घुमाओ और फिर सीधा करो, तो उसमें आप व्हर्लपूल देख सकते हो. यस, ये बॉयज सब लोग स्कूल में आते थे तब ये बहुत करते थे बोतल में, मैंने देखा है. चलो, हैव यू रिटन द मीनिंग? व्हर्लिंग मीनिंग राउंड. ओके. So strong and whirling winds also create big and strong waves. Waves में भी whirlpools होते हैं. Once the storm gets over, these waves become tall with a high wavelength which can travel great distances. अब जितना ऊंचा जाता है waves, अब गिरेगा तो उतना दूर भी जाएगा. समझ में आ रहा है ना. अगर एक बड़ी सी स्टिक, इतनी लंबी स्टिक है, तो वो गिरेगी भी यहाँ पर इतनी लंबी. समझ में आ रहा है. छोटी सी स्टिक है तो इतनी गिरेगी, इतना ही डिस्टेंस कवर होगा. बट द वेव्स, बिकॉज दे आर वेरी टॉल, when they cool down they travel a very great distance. मतलब शोर, सी शोर के सिटी के अंदर वो घुस जाती है. समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? नहीं, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड. धीरे धीरे गिरते गिरते अगर स्पीड कम हो जाती है तो डिस्ट्रक्शन कम होता है. ठीक है, बहुत लंबी वेव्स है तो नीचे आते आते स्पीड कम हो जाती है, सो इट रिजल्ट्स इनटू लेस डिस्ट्रक्शन और नियर बाय प्लेसेस. लेकिन अगर दूर तक जाती है तो ज्यादा नुकसान होगा. ओके. Hence, they are known as the destructive waves also. At times, rock falls, ice falls, or underwater landslides or slumps can generate displacement of water to create a tsunami. अब अभी हमें क्या बोला था कि पानी के अंदर अर्थक्वेक या वोल्केनो होता है, देन ओनली इट रिजल्ट्स इनटू सुनामी. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि ओशन फ्लोर में, सपोज ये ओशन है, दिस इज ओशन. ओके. एंड दिस इज द बॉटम, ये फ्लोर है उसका. अब यहाँ पर भी माउंटेन्स होते हैं, प्लेटूज होते हैं, वैलीज होते हैं, ये तो आपको पता है ना. तो कभी कभी क्या होता है कि अंडर वाटर माउंटेन्स जो है या रॉक्स है, वो ऐसे गिर जाते, ऊपर से कट करके नीचे गिर जाते हैं. और जैसे नीचे गिरते हैं तो ये वाला पानी अफेक्ट होता है. एंड हियर द वेव्स कम इन अ बिग फोर्स. जैसे आपको पता है ना कि नदी में बड़ा सा पत्थर डालोगे तो पानी कितना ऊपर आता है, ये तो आप सबने देखा है. तो ऐसे ही बड़ा सा माउंटेन अगर टूट के गिरता है तो पानी में कितना फोर्स आएगा, दैट ऑल्सो रिजल्ट इनटू सुनामी. ओके. और यहाँ पर एक वर्ड दिया है स्लम्प. देखो, दिस इज द वर्ड स्लम्प.
Slumps meaning sudden. Yes. Slumps meaning sudden fall. Write this new meaning. Slump में लिखो सडन फॉल. कभी कभी रिवर सॉरी ओशन के अंदर का माउंटेन या तो लैंडस्लाइड होती है, तो इसकी वजह से देर इज अ सडन फॉल ऑफ द रॉक्स एंड दिस ऑल्सो रिजल्ट इनटू सुनामी. Do you understand, all of you? Shall I turn the page? हाँ यस, लैंडस्लाइड था, उसका वीडियो अभी लैंडस्लाइड करेंगे ना तब मैं उसका वीडियो दिखाऊंगी आपको. साइक्लोन का भी वीडियो है, वो भी दिखाऊंगी. ठीक है, जब वहां पहुंचेंगे ना तब. तब एनी डाउट्स इन सुनामी? ओके, तो अभी आ रहा है हमारा नेक्स्ट डिजास्टर एंड दैट इज वो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में ही लर्न किया था. इंटरनल चेंजेस एंड एक्सटर्नल चेंजेस ऑन द अर्थ. याद आ रहा है? अब अर्थक्वेक क्यों होता है? तो नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होती है. वोल्केनोस क्यों होता है? तो वो मैंने प्रेशर कुकर वाला एग्जांपल दिया था. सुनामी क्यों होता है? सो ऑल द डिजास्टर्स हैव देयर ओन रीजंस. ओके, अभी कौन सा डिजास्टर लर्न करेंगे? फ्लड. ओके, चलो, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ फ्लड गिवन टू यू. हम देख सकते हैं कि इंसान देखो बेचारा चेस्ट तक पानी आ चुका है ना. ये शंकर भगवान का स्टेच्यू देखो कितना अंदर डूब गया है. एंड दिस महाराष्ट्र में आया था. यस, लेट अस डू द रीडिंग. एक्चुअली फ्लड तो आपको पता ही है, बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल और बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस व्हेन अ डैम ब्रेक्स. डैम आपको पता है ना कि वो वॉल्स बना देते बड़े बड़े. तो कभी कभी बिकॉज फोर्स ऑफ वाटर द वॉल्स ब्रेक, डैम टूट जाता है, तो भी पानी सिटी में या टाउन में घुस जाता है. देन ऑल्सो इट रिजल्ट्स इनटू फ्लड. ओके, लेट अस डू द रीडिंग पार्ट. The flow of excess of water in a river is called flood. Whenever there is lot of water in the river, and that is always because of rain. तो जब भी रिवर में पानी बढ़ जाता है, it results into flood. Flood occurs due to two reasons. Heavy rain in the upper course of a river. Upper course means upper area. That's the new meaning. Course meaning area. So, why does the flood occur? Either heavy rain in the upper course of a river, or if a dam or river breaks, flood occurs in the low-lying areas of the river bank. Okay, dam टूट जाता है, then also it results into the flood. Any doubts? Yes, flood. इसीलिए पानी आ गया था. Yes, and we have been given a small table कि इंडिया में कौन से ईयर में कौन से फ्लड आए थे. See, in 1978, we had a flood in North India in river Ganga and Yamuna. In 1979, there was a flood in Morbi because of river Machu. In 2006, we had a flood in Surat because of river Tapi. And in 2008, we had a flood in Bihar because of river Koshi. तो ये आपको याद रखना है. Any doubts? ओके, मतलब इफ देर इज हेवी रेनफॉल, बहुत ही रेनफॉल है तो फ्लड, और बिल्कुल रेनफॉल नहीं है तो फेमाइन. फेमाइन एक दूसरा वर्ड यूज होता है. यस, फेमाइन के लिए दूसरा वर्ड है ड्राउट, जिसको हम बोलते हैं दुकाड़ इन हिंदी एंड अकाल इन दुकाड़ इन गुजराती एंड अकाल इन हिंदी. ओके, तो फेमाइन एंड ड्राउट मीन द सेम, ये दोनों सिनोनिमस है. Because of heavy rainfall, we have flood conditions. Because of shortage of rainfall, we have famine or drought condition. So, are you clear with both the meanings? Okay. अभी
यस, इसलिए लैंड ऐसा हो जाता है, द फर्टिलिटी इज टोटली लॉस्ट, ड्राई हो जाता है। अब इसका रीडिंग, हाँ, yes. So the reading of famine we'll do tomorrow. This is how the page looks like. लेकिन ये हम कल करेंगे. आज अगर आपको कोई questions, if you have any queries, any doubts, you can ask me. We have less than 1 minute left, so we are not doing the reading part, but you can ask your questions. Yes, बोलो.